Realism is very boring. When I was writing आँखों देखी तो मुझे पता था कि संजय मिश्रा रोल करेंगे. There are no producers right now for independent cinema. मैं कहाँ कर पा रहा हूँ भाई, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ. Kadak was produced by my own money. After that, RK was partially my money. I'm not able to make my next film in the last 3 years. Every film is a big struggle. For people with money, only commercial success matters, as we know. Independent cinema हमेशा अपना घर बेच के फिल्म बनाता था आदमी. तो जो पहले फिल्में रिलीज हो जाती थी आराम से थोड़ा, अभी रिलीज ही नहीं होती हैं unless you have a green light from some OTT platform. अब मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेघेटा का तारा देखे थे, मैं 20 साल का था. मैंने कहा यार क्या है इसमें, ठीक है यार इतना क्या लोग. फिर मैंने 3 साल के बाद देखा, मैंने ओह माय गॉड. फिर 2 साल के बाद और देखा, मैंने ओह. It's a guilty pleasure, but it's a pleasure. I like to sleep a lot. 8 घंटा मिलता है, लेकिन 10 मिले तो मजा आ गया. নমস্কার, দ্য ওয়ালে আপনাদের স্বাগত. যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে, এটা বলতেই তিনি কলকাতায় এসেছেন. যিনি এসেছেন তার ওই শিকড়টা বা রুটসটা একেবারে নাটক, আর বাড়তি কথা যেগুলো বলা যায় না শুধু নাটকে, সেটা চলে যায় সিনেমায়. কারণ তিনি বিশ্বাস করেন তার গল্পগুলো সিনেমায় আরও ভালো করে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়. তিনি একাধারে অভিনেতা, তিনি ডিরেক্টর, তিনি নাট্য নির্দেশক এবং তিনি স্ক্রিপ্ট রাইটারও বটে. আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজাত কাপুর. উনি বাংলা বোঝেন, চেষ্টা করেছেন শব্দ জব্দতে হালকা হালকা বোঝার, সেরকম আমিও सब समझ गया. हिंदीটা একটু टूटी फूटी बोलबो. जैसे सर आप मैं बोल रहा था कि जैसे आप शब्द शब्द में टूटी फूटी बंगाली थे, तो मैं टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा. सर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, आपका जो फिल्म्स है या थिएटर है उसमें ना आप एब्सर्ड थिंग्स और उसके साथ एक ओरिजिनल और एक रियलिटी भी मिक्स करते हो. Why does it fascinate you so much? Like एक रियलिज्म और सरियलिज्म दोनों एक साथ एक पहलू में कैसे? That's a very interesting question. Realism is very boring, first of all. Very boring. It had its value, I think, when the Italian cinema discovered the genre and the idea of neorealism was there. Then it was new, and then it had something. Then it became like almost a cliche, I would say, you know. And if cinema, see, there's a problem with realism, I feel, anyway. In theatre, so I don't buy it at all, because a theatrical space is a space of unreal. Now, film has another kind of equation with it, because film deals with the reality. Because I place a camera, and obviously I'm shooting what is actually there. But then I have to make that what is actually there into something else, in a way, you know. Because if I shoot a cup of tea when I present it to you, it is a cup of tea and nothing beyond that. But a film image, by the very act of making that image, transforms reality, or should transform reality in some way, right? And I think every filmmaker who's serious about film is trying to find a way towards that transformation. So I think my way is to have something so absurd and to then play it out in a real world. So the significance of the real itself changes, you know, something like that. और एक बात सर, आप हिंदी भी बोल सकते हो क्योंकि हमारा ऑडियंस हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके. तो मेरा एक क्वेश्चन है आपका फिल्म्स को लेके. सर आप जब स्टार्ट करते हो एक वेग आइडिया से शुरू करते हो आप, एंड इट आफ्टर ऑल इट गोज बाय, स्क्रिप्ट डेवलप्स. ये अनुराग बासु का भी एक थोड़ा सा ऐसे ही वो आइडिया से शुरू होता है. लेकिन सर ऐसा कभी भी होता है कि जो आपने सोचा है और जो फिल्म हो रहा है दो पूरा अलग, मतलब एक पूरा थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं कनेक्ट हो रहा है, ऐसा होता है क्या कभी? देखो, एवरी थिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया. कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो भी एक आइडिया से शुरू करता है ना. कोई गाना लिख रहा है तो भी, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, किताब लिख रहा है, नॉवल लिख रहा है, तो भी एक आइडिया से शुरुआत होती है ना. हाउ डू स्टार्ट? बिकॉज देयर इज समथिंग एंड जर्म ऑफ एन आइडिया व्हिच इज, जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इज पुशिंग यू टू बी क्रिएटेड. लेकिन सर क्रिएटिव अनसर्टेनिटी भी तो होता है. जब
वही मैं शुरुआत होती है आइडिया से, है ना, वो इट्स अनडिनाइबल। फिर आइडिया को एक फॉर्म लेने में वक्त लगता है, वो 2 साल हो के 10 साल हो स्क्रिप्ट लिखने में, तो उसको एक फॉर्म मिल जाता है, वो एक स्क्रिप्ट है। बट फॉर मी एट लीस्ट स्क्रिप्ट जो है वो आपका एक लॉन्चिंग बोर्ड है टू टेक ऑफ। ऐसा नहीं कि फिल्म भाई फिल्म नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट है, क्योंकि अभी आप उसको शूट करने वाले हैं, उसमें अभी एक्टर्स आने वाले हैं, उसमें कैमरामैन, प्रोडक्शन डिजाइनर, साउंड, ये सब लोग आने वाले हैं, ये लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जो फिल्म आपकी बनने वाली है वो इन सबके कंट्रीब्यूशन के साथ कुछ बड़ा कुछ फर्क ही बनेगा जो आपने सोचा था। क्योंकि जो आपने सोचा था वो ऐसा कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि भाई बदल नहीं सकता, वो तो रोज बदल रहा है, शूटिंग में बदल रहा है, फिर एडिटिंग में फिर बदल रहा है, फिर जब आप साउंड कर रहे हैं, म्यूजिक ऐड कर रहे हैं तो फिर बदल रहा है, तो बात तो बदल रही है। लेकिन फिल्म के अंदर बड़ी बात क्या है, जो कि मैं बहुत स्टूडेंट्स को भी बोलता रहता हूँ फिल्म के, क्योंकि लंबा इतना प्रोसेस है कि जिस जर्म से आपने शुरुआत की थी ना, उसको छोड़ने, इसको खोने का डर रहता है क्या? वो होने नहीं देना चाहिए, वो डर है। क्योंकि 4 साल लग रहे हैं आपकी फिल्म बनने में, फ्रॉम लिखाई टू शूटिंग टू एडिटिंग टू, वो 4 साल में हो सकता है इधर के इन्फ्लुएंस, उधर के इन्फ्लुएंस, इधर का दबाव, उधर का प्रेशर, हो सकता है आपका आइडिया हाथ से छूट जाए, वो छोड़ने का नहीं है, यू नो, वो इम्पोर्टेंट है। लाइक इन अ नॉवल आल्सो, इफ यू राइटिंग अ नॉवल, जैसे दोस्तों उसकी किताब लिख रहे हैं ब्रदर्स कारामजोव, जो कि साला 1000 पेज की किताब, उनको 2-2.5 साल लगा। अब आप लिख रहे हैं, एक ख्याल आपके दिमाग में आया कि ये मुद्दे पे मुझे कुछ कहानी बनानी है, तो वो लिखाई में भी होता है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स भी आपको खींच रहे हैं। कैरेक्टर बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, वो दूसरा बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, कहानी डेवलप हो रही है, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो इस खिंचाव तनाव में फाइनली जो आप कहना चाह रहे थे वो बात छूटनी नहीं चाहिए, तो उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। सो देयर इज अ पुल, एक तरफ से आपकी क्रिएटिव चॉइसेस जो हैं वो चाहती हैं कि फिल्म या नॉवल बड़ा हो, कुछ और हो आपके आइडिया से, वो होना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन उस खिंचाव में जो आपका मूल विचार था वो जाना नहीं चाहिए। तो आप तो एक बात है जो आप इम्प्रोवाइज करते हो, करने देते हो डायरेक्टर होके एक्टर्स को, लेकिन जब सर आप मेन स्ट्रीम फिल्म्स करते हो, जैसे कपूर एंड सन्स वगैरह वगैरह, तो उस टाइम जब आपको एक डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, तो आपका जो इनर डायरेक्टर है वो क्या म्यूट पे चला जाता है या नहीं? बिल्कुल म्यूट पे। देन आई एम जस्ट वर्किंग एज एन एक्टर, और वो अगर तभी मैं सुझाव देता हूँ, लेकिन बतौर एक्टर सुझाव देता हूँ। लेकिन सर भीतर में नहीं होता है ये सीन थोड़ा सा, मतलब ऐसे करना, मतलब क्यों भाई उसको पैसे मिल रहे हैं अपने काम के, मुझे पैसे मिल रहे हैं अपने काम के, आप अपना काम करिए। देखिए अगर मैं किसी फिल्म में एक्टिंग करने को मान गया हूँ, तैयार हूँ, तो इसलिए कि उस कैरेक्टर में कुछ है, किरदार में कुछ है, या स्क्रिप्ट में कुछ है, या डायरेक्टर में कुछ बात है ना। तो अभी मेरा काम बतौर एक्टर ये है कि मैं आपकी विजन में अपने आप को समर्पित करूं, है ना। आई सबमिट माई सेल्फ to your vision. As an actor, I'm a part of your film, part of your vision. But on the creative process, you can give some things. बिल्कुल सुझाव मैं देता हूँ, लेकिन बतौर एक्टर। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि यार देखो इस लाइन को ऐसे बोल के देखें क्या, या इसमें एक ये लाइन ऐड करके देखें क्या, इट्स कमिंग मोर नेचुरली टू मी। तो डायरेक्टर बोलते हैं हाँ ठीक, ट्राई करो, ठीक, डू इट। Then it's up to the director to choose. कि नहीं यार जो मैंने लिखा था वही बोलो। ठीक है सर, ठीक, यस सर। एक बात सर, इंडस्ट्री में चल रहा है कि मतलब चल रहा है, मतलब हमने सोचा ये हो भी सकता है। सर आप क्या एक रजत कपूर एक्टिंग यूनिवर्सिटी चलाते हो? क्योंकि हम बोल रहे हैं जो आप थिएटर में एक्टर्स को लेते हो, जो आप आपके फिल्म में लेते हो, वो मेरे दोस्त हैं भाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे दोस्त हैं। रणवीर, विनय, चंद्रचूड़, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त, तीनों हैं इस नाटक। तो ये दोस्त हैं, मनु ऋषि चड्डा हैं, विजेंद्र काला हैं, सौरभ शुक्ला हैं। सर ये क्या मतलब, ये वो जो कहते हैं ना जो मैच कर रहा है, वेवलेंथ मैच कर रहा है, ये वाला है क्या? दे आर फिनोमिनल एक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, है ना। रणवीर जैसा एक्टर मतलब हर फिल्म के अंदर वो कुछ एक नया बन जाता है, और हर फिल्म में ऑथेंटिक रहता है। विनय on stage is just phenomenal, and they are friends. तो भाई मैं क्यों अपने दोस्तों के साथ नाटक ना करूं, है ना, मेरे सर पे कोई बंदूक फिल्म ना करूं, फिल्म का ऐसा है, देखो फिल्म का ऐसा है कि अगर रोल उस कैरेक्टर से मिलता है तो विनय के साथ मैंने बहुत फिल्में नहीं की हैं, आप है ना 2-4 फिल्में की हैं,
रणवीर के साथ बोलते हैं और एक चंद्रचूड़ के साथ बोलते हैं। और एक बात भी सर ऐसा भी है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे आप बोल रहे हो बतौर एक्टर फ्रेंड्स ये तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन जब लिखते हो तो याद आता है क्या इस कभी नहीं स्क्रिप्ट लिखते हुए कभी मुझे एक्सेप्ट वंस व्हेन आई वाज राइटिंग आंखों देखी तो मुझे पता था कि संजय मिश्रा रोल करेंगे। अच्छा। क्योंकि उनके चेहरा मेरे को बार बार आ रहा था लिखते हुए, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई मैंने संजय मिश्रा को भेजा, मैंने कहा भाई जब भी पिक्चर बनेगी ये रोल आप ही करेंगे। दूसरी आर के जब मैंने लिखी थी मुझे पता था ये रोल मैं करूंगा। अच्छा। क्योंकि इसका नाम आर के है और इस एक वजह से आर के दीज आर द ओनली 2 इंस्टेंसेस जहां मुझे पक्का पता था। ओके सॉरी आई नीड टू आस्क यू, आपका जो फिल्म्स वगैरह है जो आप करे हो अब तक, तो वो बॉलीवुड का जो फॉर्मूलाज है वो X=Y का फॉर्मूला वो वहाँ से हटकर होती है, इट डजंट फॉलो द फॉर्मूलाज ऑफ बॉलीवुड। अब जो अब इंडी फिल्म मेकर्स जो बना रहा है फिल्म, क्या उसको स्ट्रगल करना पड़ता है या आप रजत कपूर हो इसलिए आप कर पा रहे हो? मैं कहाँ कर पा रहा हूँ भाई, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स एवरी फिल्म टेक्स 3 to 4 years and it's very hard to make a film. Because of the producers? Because of producers, because of the market, because how things are. There are no producers right now for independent cinema. For you also? For me also, when Kadak was produced by my own money. After that, RK was partially my money. Film I made after that, Everybody Loves Sula Vanda is still not released. It's been 2 years. I'm not able to make my next film in the last 3 years. So it's never been easy. Anyway, it's not easy for any independent filmmaker, even for me. Every film is a big struggle. It's a very sad thing, sir, because your film's gone to so many festivals. It doesn't matter. Nothing matters. All that doesn't matter. Awards, festivals. A good film matters, right? For them, it doesn't. Even that doesn't matter. For the people with money, it doesn't matter. For people with money, only commercial success matters, as we know. But that's the market, law of the market. तो वो तो है, अब उसमें क्या झगड़ा करना है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर बॉलीवुड में? आर वी गोइंग बैक टू समथिंग एल्स दैट वी हैव लेफ्ट, लाइक पुष्पा 2 एंड फिल्म्स लाइक वेयर? अभी का प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, हमेशा से ऐसा था। ऐसा नहीं कि चीजें थोड़ा बदली हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी आसान था इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए। इंडिपेंडेंट सिनेमा हमेशा अपना घर बेच के फिल्म बनाता था आदमी, यू नो। तो ऐसा कुछ अभी क्या हुआ है कि अभी थोड़ा एक बिकॉज ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो जो पहले फिल्में रिलीज हो जाती थी आराम से, थोड़ा अभी रिलीज ही नहीं होती हैं अनलेस यू हैव अ ग्रीन लाइट फ्रॉम सम OTT प्लेटफॉर्म। So it's become very hard. आपको तो जैसे आप बोल रहे हो तो आपका वो satisfaction you are satisfied or if doing something is like theater, right? Because here you can just have something that you wanted to when you have started. In film also it's the same. Okay. It's exactly the same in films for me. The idea is to create what excites you. ठीक। और एक बात कहना है सर, जैसे आप दिल चाहता है किए हो, फिर मॉनसून वेडिंग, कपूर एंड सन्स, ये जो डाइवर्स फिल्म्स आप करते हो, फिर आप एक फिल्म करते हो जो आपका खुद को अच्छा लगे, तो जब चूज करते हो आप स्क्रिप्ट, ये क्या है? ये स्क्रिप्ट का लिए है, ये इट्स अ चैलेंज, ये इट्स इंस्टिंक्ट कि अच्छा होगा, आई कैन डू माय पार्ट आल्सो? सब बात है, स्क्रिप्ट भी मायने रखती है बहुत। The character you're offered also is important, and sometimes the director also is important. जैसे अगर शकुन बत्रा अभी कोई अगली पिक्चर बना रहे हैं और उसमें मुझे 2 दिन का भी काम देंगे तो मैं मना नहीं करूँगा उसको, क्योंकि वो शकुन है, मेरा दोस्त है, मुझे पसंद है, I'll do it. समझ रहे हैं? तो अलग अलग कारण होते हैं पिक्चर करने के। कभी आप दोस्ती के लिए करते हैं, कभी आप स्क्रिप्ट की वजह से करते हैं, कभी आप कैरेक्टर की वजह से करते हैं, कभी कभी आप पैसे के लिए भी करते हैं। तो ये तीनों चारों बातें हैं। दोस्त के लिए किया हुआ ऐसा फिल्म रिग्रेट होता है कि नहीं? रिग्रेट क्या है? रिग्रेट क्या है? ये करना नहीं चाहिए था, कोई रिग्रेट नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता। दोस्त के लिए किया काम तो कभी रिग्रेट नहीं होता, वो तो आपको करना ही था, उसमें रिग्रेट क्या है? वो तो आपने खुशी से किया,
because you wanted to be a part of it, because you wanted to be a part of your friend's journey, so you do it. It doesn't matter कि फिल्म मास्टरपीस है कि नहीं है, कि चली कि नहीं चली. आपके करने का कारण ही कुछ और था ना. आपके करने का कारण था कि मेरा दोस्त है भाई, मैं इसके साथ खड़ा हूँ बस. फिर आपके थिएटर में आते हैं सर. शेक्सपियर इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस. व्हेन वी स्टडीड फ्रॉम क्लास 6 to 7, जस्ट एज यू लाइक इट, देन मैकबेथ, देन हैमलेट, इट्स वेरी सीरियस थिंग. Not as you like it, but Hamlet and Macbeth Lear. So मैं पूछता हूँ कि सर इसमें जो क्लाउन फैक्टर आप जो ऐड करते हो, तो ये थोड़ा सा हटके तो है ही, लेकिन ये आइडिया कैसे आया? मतलब हम लोगों ने एक नाटक किया था 99 में called C for Clown. C for Clown. That was the first time I worked with clowns and created a play about clowns. फिर मुझे ख्याल आया कि क्या होगा अगर क्लाउन्स जो हैं वो कोई क्लासिकल टेक्स्ट करते हैं. तो पहले मुझे लगा कि ईडिपस करना चाहिए. ईडिपस पढ़ा हम लोगों ने, फिर मतलब नहीं जमा. फिर हैमलेट का ख्याल आया, तो पहला प्ले हमने हैमलेट द क्लाउन प्रिंस किया. तो आइडिया यही था कि अगर क्लाउन्स एक क्लासिकल टेक्स्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, किस भाषा में करेंगे, उसमें क्या ला सकते हैं, कैसे अपने कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है बात. क्लाउन्स को ये भी आज़ादी होगी कि वो नाटक के ऊपर कमेंट कर सकें वाइल प्लेइंग. तो नाटक करते करते बीच में रुक के बोले ये हैमलेट क्यों कर रहा है ऐसा, पागल है क्या, वो फीले हुए इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है. तो ये ऑल दीज पॉसिबिलिटीज बिकेम रियल. देन आई डिड लियर एंड देन आई थॉट यार कितना मजा आएगा अगर 4 शेक्सपियर के नाटक चल रहे हैं साथ में, चारों क्लाउन्स के. फिर मैकबेथ ऐसी लगी, तो हम लोग 4 नाटक किए, बहुत मजा आया और क्लाउन्स के साथ. और वी ट्रैवल्ड अ लॉट विद ऑल 4 प्लेस. It was a great experience. आपके साथ कोई क्लाउन का डीपली कनेक्शन है क्या? छोटे जब पता नहीं, मेरे ख्याल से ये चैपलिन और बस्टर कीटन की फिल्मों की वजह से. आपका तो फेवरेट भी है चैपलिन, फेलिनी, सत्यजीत रे. वही. तो ये चैपलिन का इन्फ्लुएंस क्लाउन्स के जरिए. सो जैसे बात कर रहे थे सर, आपका जो आपने बोले थे कि आपका इन्फ्लुएंस है इस फेलिनी जैसे, चैपलिन बहुत है, मेनी फिल्म मेकर्स. तो ये जो हम जब चेंज होते हैं, मतलब बड़ा होते हैं, टाइम्स चेंजेस एंड सिचुएशन, पीपल लाइक अराउंड अस, तो इसका इंस्पिरेशंस अब भी है या बदल जा रहा है? बदलता रहता है, बट योर फेवरेट फिल्म्स रिमेन योर फेवरेट फिल्म्स. आई स्टिल थिंक 8.5 is one of the best films ever made, and Chaplin's Modern Times, City Lights. Of course it changes every year, it changes. अब मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेघेटा का तारा देखे थे, मैं 20 साल का था. मैंने कहा यार क्या है इसमें, ठीक है यार इतना क्या लोग. फिर मैंने 3 साल के बाद देखा, मैंने oh my god what is this film. फिर 2 साल के बाद और देखा, मैंने वाह. जैसे जैसे आप बदलते हैं वैसे वैसे आपके विचार भी बदलते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग भी बदलती है सिनेमा को लेके. यू चेंज. सिनेमा और थिएटर दोनों तरफ आप 2 पहलू में रखे, तो इसका कॉमन थ्रेड क्या है जो आपको कनेक्ट करता है? कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, एक्सेप्ट दैट बोथ यूज एक्टर्स इन सम वे. उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है थिएटर सिनेमा में. फिलोसॉफिकल कोई चेंजेस, फिलोसॉफिकल कोई थ्रेड नहीं है? नहीं, वो तो किसी भी आर्ट में है. वो तो आप लिखाई करें तो भी, और फिलोसॉफिकल तो वो तो इट्स बियॉन्ड आर्ट, इट्स अबाउट हाउ यू सी लाइफ, राइट. तो वो तो इट्स विद इन यू, सो इट विल रिफ्लेक्ट इन व्हाटएवर यू डू. ठीक सर, आप तो एंड में चले आ रहे हैं, आपको भी जाना है, बहुत सारा काम है आपका. मैं थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा. ओके, आर यू रेडी फॉर इट सर? आई डोंट नो. So first question is, थिएटर या सिनेमा अगर एक परमानेंटली डिलीट करना पड़े किसी, नहीं, नॉट अलाउड. दोनों ही चलना पड़ेगा. ठीक. एक्टिंग या डायरेक्टिंग, बिल कौन भरता है और सोल कौन नरिश करता है? बिल तो एक्टिंग से ही भरता है. The same goes everywhere. थिएटर से और थिएटर, actually I'll tell you something, because actually theater gives more money to me than my films do. Right. As a director, my films I only lose money. Theater at least gives a little bit. फिल्म बनाना तो मतलब पैसा डुबोना ही है. कोई कैरेक्टर जो रैप के बाद भी आपके साथ रह गया है? कोई नहीं, कभी नहीं, never. क्लाउन का रेड नोज पहनना पसंद या शेक्सपियर का रॉयल क्राउन? Yes, Shakespeare Royal Crown. No, I prefer the clown. वो फिल्म जिसने आपकी जिंदगी बदल दी एज ए व्यूअर?
Maybe Pyasa, maybe 8.5. Okay. Yeah. And Bengali some? Shivanarekha. ग्रेट फिल्म सर. Great. कोई रोल जो आपने रिजेक्ट किया था और आज लगता है कि गलती हो गई? कभी नहीं. कभी नहीं हुआ. ऐसी गिल्टी प्लेजर जो सीक्रेटली पसंद है पर कभी एडमिट नहीं की? हो तो अभी क्यों करूं फिर? I like to sleep. You like to sleep? I don't know if it's a guilty pleasure, but it's a pleasure. I like to sleep a lot. I can sleep for 10 hours. सच में? Every day. 8 hours तो 8 घंटा मिलता है, हाँ. लेकिन 10 मिले तो मजा आ गया. थैंक यू सर. सो फास्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस. ज्यादा कैओटिक कौन है? नो स्क्रिप्ट थिएटर रिहर्सल या लो बजट फिल्म शूट? ज्यादा chaotic फिल्म है, ज्यादा स्ट्रेसफुल ये है. सबसे एब्सर्ट नोट जो किसी प्रोड्यूसर ने आपको दिया हो? भाग जाते हैं यार, नोट नहीं देते. बोलते तो हैं कि सर सर बस सर, और फिर गायब हो जाते हैं. अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक फिल्म जॉनर होता तो आपकी बायोपिक का नाम क्या होता? सर अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक फिल्म जॉनर होता तो आपकी बायोपिक का नाम क्या होता? टू बी और नॉट टू बी. ग्रेट आंसर. हैमलेट द क्लाउन प्रिंस में बॉलीवुड कास्टिंग करते हो तो हैमलेट कौन बनेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. सॉरी. बैड एक्टिंग वर्सेस बैड लाइटिंग क्या ज्यादा अनबियरेबल लगता है? बैड लाइटिंग इन द थिएटर मतलब प्लेस में. Bad acting is more obvious and more troublesome for sure. ऐसे कोई फिक्शनल कैरेक्टर जो आपने क्रिएट किया पर रियल लाइफ में मिले तो नाइटमेयर हो? डॉक्टर इन खौफ भाई. डॉक्टर इन खौफ? हाँ, बहुत इरिटेटिंग था सर. आप बहुत इरिटेटिंग थे. अब जब भी आते थे वो जब निकालते थे वो वाला चीज, ओफ. आपको कैसा लगता था? मतलब मुझे बहुत मजा आया करने में, बहुत मजा आया. जब आपने देखा तो नहीं क्या होता है, गूज़बम्प्स वगैरह? ठीक है, वी आर वाचिंग, दैट्स ओके. आई डोंट गेट दैट इन्वॉल्व, बट करने में बहुत मजा आया क्योंकि बहुत अच्छे लिखा था और बहुत अच्छा शूट किया पंकज ने, और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया. शॉट टेकिंग बहुत अच्छी है. वो जो लड़की है मोनिका, शी इज अमेजिंग. अमेजिंग. So it's one of the really fine things that I worked. और एक बात भी है सर, खौफ में भूत कहीं नहीं दिखा. मतलब वो जो फियर एलिमेंट था ना, वो इतना. स्मिता खान ने जो लिखाई की है, it's fantastic. Really people write so well. ठीक. आपकी कोई फिल्म, मुझे पता है ये आंसर कौन सा होगा, फिर भी पूछ रहे हैं, आपका कोई फिल्म जो अंडररेटेड रह गई और दिल से चाहते थे कि लोग इनको देखें? अभी तो फिलहाल तो आर के है भाई. कड़क नहीं? हाँ, कड़क. अभी आर के कड़क तो एटलीस्ट रिलीज तो हुई यार. आर के तो रिलीज ही नहीं हो पा रहा. अभी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म लेने को तैयार नहीं है. या सो दैट. उसके बाद अगली का था ना फिल्म? नहीं, वो सोरा भांडा, एवरीबॉडी लव्स सोरा भांडा, वो भी रिलीज नहीं हुआ. एप्लॉज भी रिलीज नहीं हुआ. यही हाल है भाई. ये सोचिए कि एप्लॉज की मतलब इतनी मसल के बाद वो लोग नहीं कर पा रहे, तो हमारी क्या औकात है? हम कौन है? फेवरेट को एक्टर जिनके साथ काम करने आप हमेशा अलर्ट रहते हैं? को एक्टर रणवीर के साथ मैंने बहुत फिल्में एक्टिंग नहीं किया. फेवरेट को एक्टर जिस काम करने हमेशा अलर्ट रहते हैं. As an actor, I don't have that feeling. Didn't get that feeling. ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ मैंने रेगुलरली काम किया. I would say there's something I might be doing with Nasir Saab. I'm very excited about that. Okay. Film. Breaking हो गया सर. So crowdfunding freedom है या एक डरावना gamble? It's the last resort. It's absolute freedom, but it is hard. अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो आज कौन सी बोरिंग नौकरी आप करते? आर्टिस्ट ही होते. ज्यादा ड्रामेटिक मोमेंट कौन सा है, एक हार्ट ब्रेक सीन या थिएटर टेक रन के बीच दिल्ली की गर्मी और पावर कट? I think heart break scene to watch or to live? To live, to watch. To live. हाँ. Heart break scene will be heartbreaking यार. लास्ट क्वेश्चन, अगर क्लाउन वर्जन ऑफ रजत कपूर ये इंटरव्यू देखे तो वो क्या कहेगा? कहेगा बहुत ही बकवास कर रहा है यार, चलो बंद करो. तो रजत जी আমাদের সঙ্গে ছিলেন.
এরকম অনেক ইন্টারভিউ, আড্ডা, আলোচনা দেখার জন্য দেখতে হবে দ্য ওয়ালকে। এবং দেখতে হবে দ্য ওয়ালকে। হ্যাঁ, মানে দেখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ ইট। So I said that to দেখতে হবে, you have to watch this interview and you have to see more updates on news, entertainment, so you have to watch the wall. Keep watching the wall. বিনোদনের সব খবর জানতে চোখ রাখুন দ্য ওয়াল এন্টারটেনমেন্টে।